ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد۔ پارہ نمبر 20 سورۃ النمل، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 19 کی آخری آیت مبارکہ کا آخری حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کی ذات بہتر ہے، اما یشرکون، یا وہ جو شریک کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے جا رہے ہیں وہ بہتر ہیں۔ یہ ایک سوال اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سامنے رکھا، اور یہی سوال ہوگا قیامت تک آنے والے مشرکین کے سامنے کہ بتاؤ، ایک طرف اللہ کی ذات اور ایک طرف معبودان باطلہ، جھوٹے معبود، دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ یاد رکھیے، معبود بننے کے لیے بہت سی شرائط ہیں، ان میں معبود کے کمالات، معبود کے احسانات، معبود کی توجہات، اور وہ ذات کتنی لاریب، اور اس کی شرائط میں سب سے پہلی شرط واجب الوجود کا ہونا، خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا۔ جب ہم یہ دوسرے جو جھوٹے معبود ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک سوال اٹھا دیا، بتائیے اللہ کی ذات بہتر ہے معبود ہونے میں، یا جو دوسرے جو شریک کرے جا رہے ہیں اللہ کی ذات کو، یہ بہتر ہے؟ اب آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ دلائل کے انبار لگا رہے ہیں، دلائل کے ڈھیروں کے ڈھیر لگا رہے ہیں۔ کس بات پر؟ کہ تم خود فیصلہ کرو، ایک طرف اللہ کی ذات ہے اور ایک طرف معبودان باطلہ ہیں، جھوٹے معبود ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا، اور ایک طرف سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اب فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے، تم نے خود فیصلہ کر کے بتانا ہے اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ کی ذات معبود کے لحاظ سے بہتر ہے، یا اما یشرکون، یا وہ جو شریک کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اب دلائل کی دنیا میں اللہ نے سب سے پہلی دلیل جو پیش کی اور سوالیہ انداز میں پیش کی، پوچھا گیا، یوں سمجھیں کہ ایک عدالت اور کچہری لگ گئی، مشرک کو کھڑا کر دیا گیا، اور ایک طرف اس کے جھوٹے معبود ہیں اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے مشرک سے، امن خلق السماوات والارض، یہ بتا کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف پیچھے پڑ رہا ہے، تو پھر امن پھر اس کے شروع میں لگے گا، یہ بتاؤ کس نے اتارا تمہارے واسطے آسمان سے پانی کو؟ پہلا سوال یہ تھا اللہ کا، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو؟ کس نے اتارا تمہارے واسطے آسمانوں سے پانی کو؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جملے ہیں نا، یہ انسان کے دل چیر دینے والے جملے ہیں، اور اللہ کی طرف سے شکوہ اور شکایت بھی ہے۔ بندے ذرا چیک کر، اتنی بڑی بڑی نعمتیں میری لے کر پھر غیر کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے، نام غیر کا لے دیتا ہے۔
तौहीद इसके 4 दर्जात हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तौहीद के 4 दर्जात हैं। सबसे पहला दर्जा अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है, और वाजिबुल वजूद होने में किसी की मोहताज नहीं, बाकी सारी कुछ कायनात उस ज़ात की मोहताज है। ये वाजिबुल वजूद है। और इस दर्जे में, तौहीद के इस पहले दर्जे में, वाजिबुल वजूद होने में आप किसी को भी पूछ लें, मुसलमान से पूछें तब, मुशरिक से पूछें तब, काफिर से पूछें तब, काफिरों में हिंदू सिख किसी से भी आप पूछें, वो कहेगा कि अल्लाह की ज़ात वाजिबुल वजूद है, इसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। तौहीद का दूसरा दर्जा खालिकियत का है, खालिक होने का। अल्लाह पैदा करने वाले हैं, अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं पैदा कर सकता। ये तौहीद का दूसरा दर्जा भी मुत्तफ़क़ुन अलैह है, इसके ऊपर भी सबका इत्तेफाक है। मुसलमान भी उसी पर मुत्तफ़िक और काफिर मुशरिक भी इसी पर मुत्तफ़िक कि अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं पैदा कर सकता। अल्लाह की ज़ात को वाजिबुल वजूद मानते हैं, अल्लाह की ज़ात को खालिक मानते हैं। तीसरा दर्जा तौहीद का है तदबीर। काम कौन करता है, इसके अंदर आकर फिसल जाते हैं। मुसलमान कहता है जिस तरह अल्लाह वाजिबुल वजूद होने में यकता, जिस तरह अल्लाह खालिक होने में यकता, इसी तरह अल्लाह की ज़ात मुदब्बिर होने में, तदबीर इख्तियार करने में अल्लाह की ज़ात यकता है और कोई तदबीर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही तदबीर इख्तियार कर सकती। लेकिन मुशरिक कहता है अल्लाह भी करता है और ये बुत भी करता है, ये बाबा जी भी करते हैं, ये मज़ार वाला भी करता है, ये कब्र वाला भी करता है। ये शिरक हो गया। यहां से शिरक की इब्तिदा हुई कि जब तदबीरात में गैरों को शरीक किया तो फिर चौथा दर्जा तौहीद का है इबादत और बंदगी। यहां आकर मसला गड़बड़ हो गया, क्योंकि इबादत तो उसी की करनी थी जो मुदब्बिर है, जो खालिक है, जो वाजिबुल वजूद है। वाजिबुल वजूद भी मान लिया, खालिक भी मान लिया, लेकिन तदबीर के अंदर आकर इश्कालात में पड़े और उसी की वजह से फिर इबादत और बंदगी के अंदर फिसल गए। फिर अल्लाह की ज़ात के साथ औरों को माबूद बनाना शुरू कर दिया और उनकी भी बंदगी और इबादत करनी शुरू कर दी। तो दो चीजों में, तौहीद के तो टोटल 4 दर्जात हैं, दो चीजों में तो सब मुत्तफिक हैं, दो चीजों में आकर गड़बड़ कर रहे हैं। तो जब दो चीजों पहली को मान लिया तो दूसरी दो चीजों को क्यों नहीं मान रहे? अगर अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और माबूद है तो वो वाजिबुल वजूद क्यों नहीं है? अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई और माबूद है तो वो खालिक क्यों नहीं है? उसकी कोई मिसाल तो लाओ, कुछ उसने पैदा किया? कुछ नहीं किया। जब अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी ने कुछ पैदा नहीं किया, कोई वाजिबुल वजूद नहीं है, तो फिर तदबीर भी कोई नहीं कर सकता और इबादत और बंदगी भी किसी की नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की जा सकती। अब सवाल सुनिए अल्लाह ताला का, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन, किसने उतारा तुम्हारे वास्ते आसमानों से पानी को। पानी कौन उतारता है? अब ये अल्लाह ताला के सवालात भी हैं और एक तरफ ये अल्लाह की तौहीद के दलाइल भी हैं, एक तरफ ये अल्लाह ताला के कमालात भी हैं, एक तरफ ये अल्लाह ताला के एहसानात भी हैं, और एक तरफ देखें तो ये इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की तवज्जुहात भी हैं। फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा, फ़अंबतना फिर हमने उगाया, बिही उस पानी के जरिए से, हदाइक़ बाग को, ज़ात बहजतिन रौनक वाले,
बहजा कहते हैं रौनक, खूबसूरती वाली। हदाइक हदीकतुन की जमा है। बुस्तान भी बाग को कहते हैं, हदीकतुन भी बाग को कहते हैं। दोनों में फर्क सुन लीजिए। हदीकतुन जिसकी जमा है हदाइक, ये वो बाग होता है कि अंदर फलदार पौधे लगे हैं और उसकी बाहर से बाड़ लगी हुई है, चाहे दीवार के साथ उसको कवर किया गया हो बाग को, या फिर कांटेदार झाड़ियां लगाकर उसको कवर कर दिया गया हो, या फिर आजकल बहुत से लोग लीमू के दरख्त लगा देते हैं, वो भी कांटेदार, ताकि बंदा को गुजर कर बाग तक पहुंच ना सके। बाद लोग खट्टी का एक पौधा होता है वो लगा देते हैं कांटेदार, ताकि बाग के चारों तरफ बाड़ लगा दी जाए। ऐसे बाग को हदीकतुन बोलते हैं। और जो सिंपल हो, जिसकी कोई बाड़ वगैरह ना हो, उसको बुस्तान बोलते हैं। फअंबतना बिही हदाइका, फिर हमने उगाया उस पानी के जरिए से हदाइका बागात को, ज़ात बहजतिन रौनक वाले। ये तो हमने उगाए हैं ना। मा कान लकुम, नहीं है तुम्हारा इख्तियार, अन तुम भी तो ये कि तुम उगा सको, शजरहा उस बाग के दरख्त को। तुम्हारा तो कोई इख्तियार नहीं कि बाग का दरख्त उगा लो, फिर बड़ा कर लो, पौधे लगा लो, फल लगा लो, कुछ नहीं लगा सकते उसको, तुम्हारा तो कोई इख्तियार नहीं है। अब ये अल्लाह ने कमालात, एहसानात, तवज्जुहात, नेमतें जिक्र करने के बाद एक सवाल उठाया, बताओ अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह की जात के साथ कोई दूसरा माबूद है? कोई नहीं। लेकिन मक्के के मुशरिक लोग क्या करते हैं? बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि ये वो कौम है यादिलून जो फिर जाते हैं। आदला यादिलू का माना फिर जाना। नजर आ रहा है सारा खालिक कौन, नजर आ रहा है सारा आसमानों से पानी उतारने वाला कौन, नजर आ रहा है हमारे लिए बागात उगाने वाला कौन। हम तो एक दरख्त भी नहीं उगा सकते। ये जिनको सजदे कर रहे हैं ये भी कुछ नहीं कर सकते, जिनके नाम के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमाते हैं बल हुम कौम यादिलून, ये तो वो कौम है, ये वो लोग हैं जो फिर जाते, मुड़ जाते हैं। आगे फिर अल्लाह ने सवाल उठाया, अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारन, किसने बनाया जमीन को ठहरने की जगह, करार मुस्तकर, रहने की जगह, ठहरने की जगह जमीन को किसने बनाया? अल्लाह की जात ने। वजअल खिलालहा अनहारन, और किसने बनाया खिलालहा, इसके दरमियान में, अनहारन, नहरों को। पहले जमीन को इंसान के लिए ठहरने की जगह बनाया, इख्तियार दे दिया। जमीन को इतना सख्त बना दिया कि ये नहीं कि पांव रखे तो जमीन दब जाए, और इतना नरम बना दिया कि जब चाहो इसको उखाड़ के फेंक लो। ये है अल्लाह ताला ने जमीन को ठहरने की जगह बनाया। वजअल खिलालहा अनहारन, और बनाए इस जमीन के दरमियान से नहरें। वजअल लहा रवासिया, ये सवाल वही चल रहे अम्मन सब के शुरू में। और किसने बनाए इस जमीन के वास्ते रवासिया, पहाड़। रवासिया ये लफ्जी माना होता है बोझ। जमीन के ये जो हरकत कर रही थी इसके ऊपर बोझ डाला, मेखें लगा दी ताकि जमीन कायम दायम हो जाए अपनी जगह पर। वजअल बैनल बहरैनि हाजिजा, किसने बनाए दो दरियाओं के दरमियान हाजिजा, पर्दे। पर्दा किसने लगाया दो दरियाओं के दरमियान? जो दो दरिया इकट्ठे चल रहे हैं, खारा और मीठा पानी, पीछे तज़किरा हो चुका है इसका, उनके दरमियान पर्दा लगाने वाली जात कौन? हर एक सवाल पर जवाब आ रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो फिर अल्लाह की तरफ से सवाल आया, अइलाहुम मअल्लाह, क्या दूसरा कोई माबूद बन सकता है अल्लाह के साथ? कोई नहीं। लेकिन मुशरिकीन मक्का
बल अक्सरुहुम ला यालमून, ये मक्के वालों में अक्सर लोग जानते नहीं, समझते ही नहीं। अगला सवाल, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु, कौन है जो जवाब देता है मुज़्ज़र्रा, मजबूर बंदे को। मजबूर बंदे की पुकार पर कौन जवाब देता है? मुज़्ज़र्रा कहते हैं मजबूर को। मजबूर बंदे की पुकार पर जवाब देने वाला कौन? इज़ा दआहु, जब वो उसको पुकारे। वयक्शिफुस्सूअ, और कौन है जो दूर कर देता है उस बुराई को, उस तकलीफ को, जब मजबूर अल्लाह को पुकारता है। पुराने जमाने का वाकया है, एक आदमी, उसके पास था खच्चर, और उस जमाने की खच्चर और साथ उसके कोई गाड़ी होगी, उसने जो खच्चर के साथ लगाई हुई, जिस तरह बैलगाड़ी वगैरह होती है। उस जमाने में वो उसके ऊपर सवारियों को मुंतकिल किया करता था, दूसरी जगह सवारियों को छोड़ा करता था, जिस तरह आज कर रक्शा, चिंची और कारें वगैरह हैं। उस जमाने में ये सवारी थी। लोग उसको किराए पर लेते कि मैंने फलां जगह जाना है, तो वो चला जाता साथ। एक दिन का वाकया है, एक मुसाफिर उतरा और उसने उस आदमी से बात की। वो आदमी खुद बयान करता है कि मुझसे उसने बात की, मैंने फलां जगह जाना है। इसकी ये गाड़ी जो खच्चर वाली थी, ये चलती थी दमिश्क में। दमिश्क से लेकर आगे को मकाम था, वहां तक ये सवारियों को मुंतकिल किया करता था। एक आदमी ने इसकी गाड़ी किराए पर ले ली और इसको कहा कि मैंने फलां जगह जाना है। उसने कहा ठीक है। जब चलते हुए एक मकाम पर पहुंचे तो वहां से दो रास्ते थे, एक मारूफ और मशहूर रास्ता था और दूसरा तंग और पुराना रास्ता था और जंगल वाला रास्ता था जो किसी को मालूम नहीं था। जब ये मारूफ रास्ते से चलने लगा, उसने कहा नहीं इधर से चलो, यहां से शॉर्टकट है। कभी मुझे तो ये रास्ता मालूम नहीं। कहता मुझे मालूम है, आप यहां से चले, मैं आपको इस रास्ते से जल्दी पहुंचा लूंगा और आपका वक्त बच जाएगा। कहा ठीक है। अब जैसे जैसे रास्ते से चलते जा रहे हैं, जंगल घना होता जा रहा है, कोई इंसान, चरिंद परिंद, कुछ कोई आवाज भी नहीं। और आगे एक ऐसे मकाम पर जहां जाकर पहुंच गए कि वहां पे इंसानों की खोपड़ियां पड़ी हुई, जानवरों की खोपड़ियां पड़ी हुई, किसी को कत्ल करके उधर फेंका, किसी को उधर फेंका हुआ। ये तो डर गया और इतने में उसने छलांग नीचे लगाई मुसाफिर ने, और जल्दी से उसके पास एक खंजर था, उसको निकाला और निकाल के इसको कहता नीचे आ जाओ, मैं तुझे कत्ल करूंगा। मेरा क्या कसूर है? कहता भी बस मैं आपको कत्ल करूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा आप। ये समझ गया कि इसको मेरे सामान का लालच है, मेरी गाड़ी का लालच है, मेरे खच्चर का लालच है। पहले तो उससे माफिया मांगी, भाई मुझे छोड़ दो। जब वो बिल्कुल बाज ना आया, उसने कहा नहीं मैंने तुझे कत्ल करना है। उसको कहा कि ये जितना मेरा सामान है ये सब का सब तुम्हें देता हूं, तुम इसको रख लो और मुझे छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं तो तुझे कत्ल करके छोड़ूंगा। ये मुसाफिर, ये जो गाड़ी वाला था, ये कहने लगा, मैंने उसको कहा कि देखो आपने अगर मुझे कत्ल ही करना है तो एक मेरी आखिरी आरजू पूरी कर लेने दो, बताओ क्या आरजू है। कहने लगा मुझे कोई 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत दे दो। ठीक है पढ़ लो। कहते मेरे ऊपर खंजर खड़ा हुआ, मौत मेरे सर पे खड़ी हुई, और मैंने अल्लाह के दरबार में 2 रकात नमाज की नीयत बांधी, और नमाज पढ़ने के बाद अब मैं कुरान पाक की आयतों को तलाश कर रहा हूं, कौन सी आयत अल्लाह ताला की मदद जल्दी लेकर आएगी। कुरान पाक की यही आयत मुबारक, अम्मन युजीबुल मुज़्ज़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सूअ, ये आयत मुबारक जुबान पर जारी हो गई। पढ़ लिया इस आयत मुबारक को। अल्लाह फरमाते हैं बताओ लोगों कौन है
जो मजबूर बंदे की पुकार को सुनता है, जवाब भी देता है जब वो उसको पुकारता है। वयक्शिफुस्सूअ, और कौन है जो उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, उसकी परेशानी को हटा देता है? अल्लाह की जात है। कहने लगा जैसे ही मैंने ये आयत मुबारका पढ़ी, जंगल की तरफ से एक सवार, सवारी पर सवार दौड़ता हुआ आ रहा है, तेज सवारी के साथ, उसके हाथ में तेज खंजर है। उसने आते ही उस डाकू के सीने पर मारा और उसको गिरा दिया नीचे, और वापस मुड़ने लगा। मैंने उसके पांव पकड़ लिए, मैंने कहा तू कौन है? गैबी बंदा आने वाला। उसने कहा मैं उसी का भेजा हुआ हूं जिसको तूने पुकारा है। जब उसको पुकारा जाए वो खाली नहीं छोड़ता। पुकारने में आना चाहिए ना, पुकारा जाए सही। हम क्या करते हैं, हमारे पुकारने के अंदर कमियां हैं, इस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। हमने तो इतनी दफा पुकारा। जब अल्लाह खुद वादा कर रहे हैं, मजबूर बंदे की पुकार को अल्लाह सुनते हैं, तो फिर हमारे पुकारने के अंदर कमी हो सकती है, अल्लाह के अता करने के अंदर कोई कमी नहीं हो सकती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 दुआएं जरूर कबूल होती हैं जिसमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं। एक मजलूम की दुआ, जब किसी के ऊपर जुल्म हो ना, और वो उसी वक्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होकर अल्लाह को पुकारे, अल्लाह मजलूम की दुआ को रद्द नहीं करते, फौरन कबूल कर लेते हैं। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। किसी को तकलीफ देते वक्त ये सोचना चाहिए मैं जालिम हूं, वो मजलूम है, और मजलूम की दुआ फौरन कबूल हो जाती है। ये ना हो कि मेरे बारे में बद्दुआ कर दे और मेरा काम यही तमाम हो जाए। दूसरे नंबर पर मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। तीसरे नंबर पर वो बाप जो अपनी औलाद के लिए बद्दुआ करते हुए हाथ उठा दे, अल्लाह इसकी दुआ को रद्द नहीं करते, इसकी भी बद्दुआ कबूल हो जाती है। ये 3 ऐसी दुआएं हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फौरन कबूल हो जाती हैं। और ये तीनों मकामात हैं मजबूर होकर। मजलूम बंदा मजबूर हुआ तो अल्लाह का दरवाज़ा खटखटा दिया। मुसाफिर बंदा जब सफ़र के अंदर है, हर तरफ से कट गया, उसको अल्लाह का दरबार नजर आया, मजबूर होकर अल्लाह का दरवाज़ा खटखटा दिया। और जिस औलाद ने बाप को परेशान कर दिया, बाप के आंसुओं को रुला दिया, बुढ़ापे के अंदर बाप के सफ़ेद बालों की हया ना की, जब उस बाप को कांपते हुए हाथ अल्लाह के दरबार में उठे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाप ने बद्दुआ की, अल्लाह फौरन कबूल कर लेते। अगर इंसान दुआ करते वक्त मजबूर होकर अल्लाह के दरबार में हाथ उठा दे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन 2 वजह ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इंसान को अपनी दुआ नजर नहीं आती। नंबर 1, उसमें कोई हिकमत और मसलहत होती है कि अल्लाह उसका ज़हूर नहीं करते, उसी वक्त देर कर देते हैं उसको, कि जाहिर तो होगी दुआ की कबूलियत, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। उसमें कोई हिकमत मसलहत। और दूसरी वजह यह हो सकती है कि हमारे इखलास में, तवज्जो इल्लाह में कोई कमी हो सकती है। इस वजह से हमें अपनी दुआ की कबूलियत का ज़हूर नज़र नहीं आता। वरना अल्लाह ताला तो कुरान पाक के अंदर वादा फरमा रहे हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है मुझसे दुआएं मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। वादा फरमा रहे हैं अल्लाह की जात। और यहाँ अल्लाह सवाल कर रहे हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा, बताओ कौन है जो मजबूरों की सुनता है, इज़ा दआहु, जब वो उसको पुकारते हैं, व यक्शिफुस्सूअ, और तकलीफ दूर कर देता है, व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़, और बताओ दुनिया के अंदर रहने वालों कौन है जो तुम्हें बनाता है जमीन पे नायब। खलीफा का माना नायब,
यहां नाइब होने का क्या मतलब? आज जो लोग मौजूद हैं ये अपने माँ बाप के नाइब और वारिस हैं। पहले इनके माँ बाप होते थे, वो अपने माँ बाप के नाइब और वारिस थे, वो फिर उनके वालिदैन जो अपने माँ बाप के नाइब और वारिस थे। यह सिलसिला दुनिया का यूं ही चलता रहा, एक चैन की सूरत में चल रहा है। आज जो दुनिया में लोग मौजूद, अल्लाह इनको कह रहे हैं बताओ तुम्हें किसने नाइब बनाया है जमीन में? अल्लाह की जात ने बनाया। अब फिर अल्लाह का सवाल आया, अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह की जात के साथ कोई दूसरा माबूद है? कोई नहीं। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम है जो तुम ध्यान करते हो, नसीहत हासिल करते हो इन बातों से। अब फिर सवाल उठा, अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि, कौन है जो रास्ता दिखाता है तुम्हें फी ज़ुलुमातिल बर्रि, जंगल के अंधेरों में, वल बहरी, और दरियाओं के अंधेरों में। दरिया और जंगल के अंधेरों में कौन है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है? जवाब, अल्लाह की जात। फिर सवाल उठा, वमन युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही, कौन है जो चलाता है हवाओं को बुशरन, खुशखबरी लाने के लिए, बैन यदै रहमतिही, अपनी रहमत से पहले। अल्लाह की रहमत बारिश आने वाली होती है और उस बारिश से पहले हवाएं चलती हैं जो आकर इत्तला दे देती हैं, लोगों खुश हो जाओ, अल्लाह की रहमत आने वाली है। अल्लाह ने सवाल किया, कौन है जो खुशखबरी सुनाने के लिए रहमतों की हवाएं चलाता है, फिर अल्लाह की रहमत बारिश आती है? जवाब, अल्लाह की जात। अब फिर सवाल हुआ, अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद है? ये सारे सवालात, कमालात, एहसानात अल्लाह बयान करके इंसान को झंझोड़ रहे हैं। बता मुशरिक, जिसको तू अल्लाह की जात के साथ शरीक मान रहा है, अल्लाह की जात के साथ जोड़ रहा है, इनमें कोई काम तो किसी और का होता हुआ दिखा। सब कुछ अल्लाह की जात करने वाली, तो अल्लाह को छोड़कर गैर के दर पे जा रहा है। ताल अल्लाहु अम्मा युशरिकून, बुलंद है अल्लाह की जात उस चीज से जिसको वो शरीक बतलाते हैं। अब फिर सवाल हुआ, अम्मन यबदाउल खल्क, कौन है जो पहली मर्तबा पैदा करने वाला? बदा यबदाउ, पहली मर्तबा, नए सिरे से। सुम्मा युईदुहु, फिर उसको दोहराएगा। पहले अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह मौत देगा, फिर क़यामत के दिन अल्लाह दोबारा जिंदा करेगा। इस तख्लीक को अल्लाह दोबारा दोहराएगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ देता है आसमानों से और जमीन से? हर सवाल का जवाब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर अल्लाह का सवाल आया, अइलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह की जात के साथ दूसरा माबूद है? कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात माबूद। कुल, फरमा दीजिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकीन को इतने कमालात सुनने के बाद, इतने एहसानात सुनने के बाद, इतनी अपनी तरफ अल्लाह की तवज्जुहात सुनने के बाद, हातू बुरहानकुम, ले आओ तुम अपनी कोई दलील, अपनी कोई सनद लेकर आओ। ये जो शिरक करते हो अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की जात के साथ शिरक करते हो, कहीं चढ़ावे चढ़ाते हो, कहीं अल्लाह के नाम के साथ किसी और को मिलाते हो, माबूद इबादत करते हो, कहीं जनाब देगें चढ़ाते हो, कहीं चादरें चढ़ाते हो, कहीं बकरे और छतरे चढ़ाते हो, नजर व नियाज गैरुल्लाह की देते हो। अल्लाह ने सवाल उठ कर दिया, हाँ तू बुरहानकुम, ले आओ अपनी कोई सनद तुम्हारे पास है, कोई दलील तो दिखाओ, इनके माबूद बनने की कोई दलील तो दिखाओ। अल्लाह ने तो हजारों दलीलें पेश कर दी। हाँ तो बुरहानकुम, लाओ अपनी कोई दलील, अपनी कोई सनद, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर इस शिरक के दावे में सच्चे हो तो लाओ तुम भी कोई दलील पेश करो। जाहिर है कोई दलील नहीं, सिर्फ और सिर्फ शैतान का धोखा है। निकल आइए इस धोखे से। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
اللہم صلی علی محمد